So, very good evening. So, we'll be starting with this case study 20 and 21. So, I would request Deepi Jain ji to please read this case study. Okay. Classic Transformers Private Limited CD was incorporated in 1985. It is classified as non-government company and it has its registered office in Ahmedabad. It is one of the manufacturing unit in Telangana district in Pune, Maharashtra and principal office in New Delhi. As per records of MCA, its authorized share capital and paid up share capital is rupees 200 crores. It carries on business of manufacturing of television and radio transmitters and wireless apparatus. The directors of Classic Transformers Private Limited are Mr. Paras Singhania and Mr. Raman Nair. Okay. So, let us stop here. Let us stop here. Okay. एक तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। इसको मैं 200 करोड़ कर देता हूँ, ठीक है, वो रह गया होगा। चलिए, तो नाउ इफ वी स्टॉप हियर, सो द क्वेश्चन ऑन पब्लिक अनाउंसमेंट कैन बी आंसर्ड फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अच्छा, इसके बाद ये पढ़ लीजिए पब्लिक अनाउंसमेंट। IRP had made a public announcement in Form A on 1st September 2020 in two newspapers, one English and one regional. In English language circulating at the location of registered office of company and in Pune, as the IRP felt that CD conducts material business operation from Pune too. It was also published in the website of CD and website designated by IBBI. The last date for submission was stated 13 September 2020. Mr. Rajiv Khosla incurred 12,000 cost of publishing. The committee rectifies expenses to the tune of 8,000. So these are, so up to this. Now let us discuss this concept of public announcement. Let us see the first question. What is the first question? So we'll go question wise. So whether IRP was correct in choosing the location of publishing the public announcement in terms of the provisions of the code and CIRP regulations? Yes, because So it there should are be two in questions registered basically. office. Hanji. This is the first question, and second is regarding the ratification of the cost. So अभी एक बार ध्यान से पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है? Two newspapers, one English language newspaper and one regional language newspaper in English language. One regional language news. अच्छा, मतलब दोनों ही इंग्लिश में थे इसका मतलब. हाँ, तो पहली बात तो ये इंफॉर्मेटिव हो गई इस केस में। ठीक है, Okay. तो ये है द पब्लिकेशन इन रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज ओनली। Okay. तो पहला तो ये प्रॉब्लम हो गई इसमें। ठीक है सर. जैसे अगर तेलंगाना की जो भी है, तेलुगु है या जो भी है, ठीक है सर. एक तो ये हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द कॉस्ट। So he has incurred a cost of 12,000. Committee has ratified 8,000. So the question here is, who will bear the rest? सर ये तो 8,000 ही इंक्लूड होगी कॉस्ट में, CIRP कॉस्ट में, टू द हाँ, एक्सटेंट रेक्टिफाइड बाय COC. और बाकी का क्या होगा? इसने तो 12,000 खर्च कर दिए, हम्म. तो ये अपनी जेब से देगा, क्या करेगा? सर एप्लीकेंट ही बियर करेगा फिर. हाँ वो, हाँ तो ये बिल्कुल सही है आपकी बात। ये इसका आंसर आपको कहाँ दिया गया है? इसका आंसर आपको दे रखा है ये इसमें रेगुलेशन 6 में ही मिल जाएगा। रेगुलेशन 6 एक बार पढ़ लेंगे तो दोनों चीजें क्लियर हैं उसमें। रेगुलेशन 6 अगर हम देखें तो CIRP रेगुलेशंस का, तो क्लियरली सेज, क्या कहता है? द एप्लीकेंट शैल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट विच मे बी रिइंबर्स्ड बाय द कमिटी टू द एक्सटेंट इट रेटिफाइज देम। तो एप्लीकेंट को बियर करने, ठीक है। नाउ इफ दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, राजीव खोसला बियर करेगा या एप्लीकेंट बियर करेगा? तो एप्लीकेंट बियर करेगा, मतलब ट्रेडेक्स, जो जिसने एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन किसने लगाई है? ऐसा ही था कुछ नाम इसका, सर ये देखना पड़ेगा. वन ऑफ द, ये है ना इसमें, ये इसने लगाई है बेस्ट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके. है ना। तो हाँ ये जी. ये जो बेस्ट ट्रेडेक्स है, जो एप्लीकेंट है, ये बियर करेगा। ठीक है सर. एप्लीकेंट शेल बियर रुपीज, जो डिफरेंस है, रुपीज 2,000,
बाकी तो आईआरपी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ओके। ठीक, चलिए। One of the OC Best Tradex Private Limited filed an application for initiating CIRP of classic transformers for the non-payment of its due to the tone of 1.30 crores. हम्म The AA, after issuing notice to CD, passed an order of admission of 30th August 2020. हम्म Rajiv Khosla was appointed as interim professional resolution on the same date. हम्म In its first meeting held on 10th October 2020, COC Ms. Nisha Sundaranjan as IRP in place of Mr. Rajiv Khosla. ठीक है, तो यहां तक तो और कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतना ही था। ठीक है, चलिए आगे ठीक है। चलते हैं। ये हो ही ये गया, पब्लिक, ये हमने हाँ पढ़ ही जी। लिया। नाउ Following फॉलोइंग क्लेम्स claims वर रिसीव्ड। were received and admitted by Mr. Rajiv Khosla, IRP, and later on by Ms. Nisha RP. हम्म So, ये claims आ गए जनता बैंक। ठीक है, ओके। अब इसमें इसके आगे भी हम लिख सकते हैं कि जैसे जनता बैंक वाला क्लेम है, तो ये क्या है? ये एफसी। ये तो एफसी हो गया हमारा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, इसको यहाँ, ये यहाँ लिखा जाएगा। इसी के आगे हम लिख देते हैं जनता बैंक, ये जो है ये एफसी है। फिर वो लिखा हुआ है लिखा हुआ? अच्छा, स्टेटस, बस ठीक हाँ है। जी। ठीक है, हाँ लिखा हुआ, ठीक है। परिवार बैंक ये एफसी हो गया। राशि सिंघानिया ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब ये वाइफ ऑफ पारस सिंघानिया है। अब पारस सिंघानिया कौन है? डायरेक्टर होगा। हाँ, पारस सिंघानिया डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये रिलेटेड पार्टी हो गई। तो रिलेटेड ओके। पार्टी सीओसी में जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। बेस्ट ट्रेडेक्स ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है, जिसने फाइल की एप्लीकेशन ना, बेस्ट ट्रेडेक्स हाँ ने जी, की है ना। हाँ जी सर, बेस्ट ट्रेडर्स ने किए। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये हो गया। और उसके बाद में इलेक्ट्रोलक्स सप्लाईज, ये 45 लाख का, इसका क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये लेट फाइल हुआ। 18 दिसंबर को फाइल हुआ, क्योंकि विद इन 90 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट फाइल होना चाहिए था। और सर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कब की है हमारी? 10th। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है हमारी ये 30th अगस्त। तो 30th अगस्त से आपको 90 डेज काउंट करने हैं। तो सितंबर ले लीजिए 30 डेज, अक्टूबर ले लीजिए 31 डेज, है ना। और कहाँ है? अच्छा, नवंबर ले लीजिए 30 डेज, और दिसंबर के ले लीजिए 18 डेज या जो भी है। तो ये 90 डेज से ऊपर हो गया। तो 90 डेज से ऊपर हो गया ना, इट इज बियॉन्ड 90 डेज। ठीक है तो ठीक सर, है, इसमें नाउ यू। एक एक प्रोविजन भी है ना कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से पहले वो सबमिट कर सकता है क्लेम। नहीं, वो ठीक है, वो तो ऐसा है ना, वो इस केस में नहीं है कुछ भी। वो ये क्या कहता है कि भाई, वो अगर तो इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि 90 डेज वाला ही वो पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, देखिए एक अलग एस्पेक्ट है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में तो लाइबिलिटी में काउंट कर लेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का ये मतलब नहीं कि क्लेम एडमिट हो गए। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को भी एडमिट कर लेगा। वो तो सूट नहीं नहीं फाइल्ड के बारे में भी लिखेगा। वो तो सारी नहीं लाइबिलिटी लिखेगा जो आ सकती हैं कंपनी पर। नहीं, वो बट नहीं मैं कह रही, मैं कह हाँ, रही कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम इज नॉट लेटर देन 90 डेज अप टू द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये कहाँ लिखा? ये तो कहीं नहीं लिखा। आप इसका रेगुलेशन 12 सब रेगुलेशन 2 पढ़ो। रेगुलेशन 12 सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? वेयर द क्रेडिटर इन सब रेगुलेशन 1 इज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, इसको तो छोड़ो, ये रेगुलेशन, ये 12 नहीं। सर ये एक मिनट मैं पढ़ रही हूँ रेगुलेशन 12 का प्रोवाइजो। नहीं, प्रोवाइडेड वो दैट तो एक अलग चीज क्रेडिटर। है। वो तो ओके। एक अलग चीज है। ये रेगुलेशन 12 का यहाँ कोई मतलब नहीं है हमारे को। ये बेसिकली बात करता है, ये आपका रेगुलेशन 12 सब रेगुलेशन 2 में ही आ जाएगा। प्रोवाइजो की जरूरत नहीं है। तो रेगुलेशन 12 सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? ऑन और बिफोर द 90th डे, बस। तो अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? या तो आपके पास लेटेस्ट बुक है? अच्छा ओके। आप देखो, वो बाद में अमेंडमेंट आई, वो आपके सिलेबस में वैलिड नहीं है। ओहो ठीक है सर, ये 13/9/23 की अमेंडमेंट हो। तभी हाँ, कंफ्यूज हो रही थी यहाँ पे ना। ठीक है ना जी। अब हाँ, ठीक है।
अच्छा अब ये 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 बातें क्या होता है, फोन पे तो हो नहीं सकती ना। अब मैं हाँ जी। आंसर दे दूं, कुछ और गलत समझ लो आप, बात ये है। ठीक तो है, इसमें अब हम अपने में 90 डेज तक ही देखेंगे ना 90 फिर। डेज तक देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। फाइन, थैंक ठीक यू, है जी, नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, और देखते हैं और क्या पॉइंट था इसमें। ये हो गया, ये सारे हो गए। अच्छा, बिग लीज, बिग लीज का भी क्वेश्चन आएगा इसमें। इस अभी तो यहाँ था ये इलेक्ट्रोलक्स। अच्छा, ये तो रिलेटेड पार्टी हो ही ये गई, तो फाइनेंशियल यस। क्रेडिटर है, लेकिन इसको रिलेटेड पार्टी मान लेंगे, ये इसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ जी। 7 वर्कमैन, 3 एम्प्लॉइज, जीएसटी ड्यूज, इनकम टैक्स ड्यूज, प्रोविडेंट फंड, रिवाइव फाइनेंस। रिवाइव फाइनेंस का क्लेम फाइल हुआ ऑन 4 सितंबर, तो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो विद इन डेट है। हाँ ठीक है। तो रमन नायर, लोन विदाउट इंटरेस्ट। रमन नायर कौन है? रमन नायर भी मेरे ख्याल डायरेक्टर है ना? हाँ, यस। रमन नायर भी डायरेक्टर है, तो ये भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। ठीक है। सर ये इलेक्ट्रिक, लोन विदाउट इंटरेस्ट का तो कुछ रेलेवेंस नहीं है ना। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ। ओके। भाई विदाउट इंटरेस्ट हो या विद इंटरेस्ट हो, इसमें ये पूछ सकता है कि अगर विदाउट इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अगर लेना है क्या हमें, द आंसर इज नो, नहीं नो। लेना, सिर्फ हाँ होम जी। बायर्स में लेना है, ठीक। 8% पे, है ना? ठीक। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज हो गए। बिग लीज, लैंडलॉर्ड फॉर एरियर्स ऑफ रेंट ऑन लीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है? क्योंकि बिग। एरियर्स ऑफ रेंट है ऑन लीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस। सर ये ओसी होगा। हाँ, ये उसी होगा, तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर गलत एडमिट किया है इसको। अब ब्रेकअप ऑफ क्लेम्स, एडमिटेड टिल डेट, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इतने और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इतने। ठीक है, ठीक है सर। चलिए यहां तक हो गया, बाकी बाद में क्वेश्चन जब आएंगे तब हम आएंगे। आईआरपी एंड आरपी, अच्छा इन्होंने ये इनको एडमिट किया, जनता को, परिवार बैंक, रिवाइव बैंक और बिग लीज को। तो एक बार देख लेते हैं। जनता बैंक तो ठीक है, परिवार बैंक भी ठीक है। बिग बिगलीज। बिग लीज कौन है? बिग लीज को तो एडमिट नहीं करना चाहिए, हाँ ये गलत हो गया ना। है ना? बिग लीज वाला गलत हो गया। और एक इन्होंने किया रिवाइव बैंक, रिवाइव। तो ये तो ठीक है। रिवाइव बैंक कौन सा है? नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट पेज। ये रिवाइव फाइनेंस, ठीक है। ठीक है। तो रिवाइव फाइनेंस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिग लीज जो है ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है, इट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड। ठीक है। आईआरपी एंड आरपी हाउएवर इनवाइटेड राशि सिंघानिया एंड रमन नायर टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय सेंडिंग नोटिस टू ऑल मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। ठीक है। तो 3 मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वर हेल्ड अंटिल 12th of December। अच्छा, वन ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इलेक्ट्रोलक्स सप्लाईज इंक बेस्ड इन न्यू दिल्ली filed its claim on 15th of December with the RP for 45 lakhs. After receiving the claim, RP writes an email to Electrolux Supplies that its claim cannot be considered as it has been filed after the time limit mentioned in the code, read with CIRP regulations. Though the books of account also show that 45 lakhs is due to Electrolux Supplies. Based on legal advice, Electrolux Supplies files an application under Section 60, subsection 5, against rejection of the claim on the ground that the delay occurred on the following grounds. He was not aware because public announcement was not made in Delhi, and RP should have admitted the claim of Electrolux supplies on the basis of books of account, and it was not necessary. तो पहले तो दिल्ली का रेलेवेंस देख लेते हैं कि दिल्ली में क्या है। दिल्ली तो में कोई ऑफिस था ना इसका? रजिस्टर्ड ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफिस है। और प्रिंसिपल ऑफिस में आपने एडवर्टाइजमेंट की नहीं, उसने कह दिया भैया आपका प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ पर है, कॉर्पोरेट ऑफिस होता है कई जगह, तो इसके लिए इसको प्रिंसिपल ऑफिस में भी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा चलिए, उसके बाद ये हो गया। तो केस स्टडी तो पूरी पड़ी हुई है ना, सीधे क्वेश्चन पर चले। केस स्टडी हाँ पढ़ी जी हुई है कि नहीं? सर, अब तो याद नहीं, ये काफी टाइम। दोबारा पढ़ लें, चलो कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, आप क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ साथ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पहले क्वेश्चंस ही पढ़ती हूँ जनरली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो चलिए। पहला ये है कि वेदर आईआरपी वाज करेक्ट इन चूजिंग द लोकेशन ऑफ पब्लिशिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कोड। ठीक नो। है। तो इसमें ये है कि एक, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि हमें रेगुलेशन तो ये दे ही दिया हमने, रेगुलेशन में कोई इशू नहीं है। एक मिनट, ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये इशू आता है इसमें, चलो कोई नहीं।
ये रेगुलेशन 6 के साथ में इसमें दो इश्यूज आए क्या। एक तो ये आ गया, पब्लिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन रीजनल न्यूज़पेपर, एक तो ये हो गया इशू। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ गया ये, क्या था वो, नॉन पब्लिकेशन। नॉन हाँ, नॉन पब्लिकेशन एट नॉन प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिस। एट प्रिंसिपल ऑफिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेदर आरपी वॉज करेक्ट इन रिजेक्टिंग द क्लेम ऑफ इलेक्ट्रोलक्स सप्लाईज एज इट वॉज फाइल्ड बियॉन्ड द टाइम स्टेटेड इन द कोड एंड रेगुलेशंस। तो इसको ये तो हो ही गया, रेगुलेशन यस। 12, ठीक है हाँ ना। जी। वो तो बाद में आया है, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान वाला पॉइंट वो बाद में आया, ठीक है। ओके। नाउ इश्यूज 3 एंड 4, इसमें क्या इशू था, वेदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन डायरेक्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू रिम्बर्स फुल एप्लीकेशन फुल पब्लिकेशन कॉस्ट। नो। और इट शुड डायरेक्ट द एप्लीकेंट बेस्ट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड टू मेक द बैलेंस पेमेंट, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, हमारा रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3 में क्लियरली दिया गया है, द एप्लीकेंट शेल बियर द एक्सपेंसेस, है ना। ओके सर, हाँ इसमें फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो नहीं किसी को डायरेक्ट करती, ये तो बाय इटसेल्फ ही हाँ, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करेगी। वो क्यों करेगी, वो बेसिकली तो क्या है कि इंटरेस्ट तो क्या है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स है। तो हाँ उसको क्या जी। जरूरत पड़ी ये करने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इशू हो गया क्लियर। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में 4th नंबर, तो इसमें क्या है, हम इसको नो लिख सकते हैं। वेदर नॉन, ये मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, वेदर नॉन इंक्लूजन ऑफ बेस्ट ट्रेड एक्ट और ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओसीज इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वाज डन करेक्टली बाय द आरपी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21 एंड 24। तो हमें एक तो प्रोवाइजो पढ़ना है, तो सेक्शन 21 सब सेक्शन 8, और एक पढ़ना है सेक्शन 24(3)(c), ठीक है जी। तो अब अगर हम ये सेक्शन खोल लेते हैं, बेसिकल इशू क्या है कि जो बेस्ट ट्रेड एक्ट है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओसी, इसको हमें कमेटी में रखना है या नहीं रखना है। सर ओसी तो आएगा ही नहीं ना। नहीं, ओसी पहले तो हम ये देख लेना कि ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं कितने, ये भी तो देख लेते ना भाई। आप ये देखो, ये एक तो ये कह रहा है कि ओसी आपके 2.7 करोड़ हैं, और टोटल डेट कितने हो गए हमारे वो देखना है। तो एक बार पेन पेपर लेके 2 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं इसको, सही रहेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। जनता बैंक तो क्लियर है 3.6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। 0.50 हो गया। 3.60 हो गया, परिवार बैंक 3 करोड़, ये भी ठीक है। ठीक है सर। राशि सिंघानिया, राशि सिंघानिया को अलग लिख लेंगे 0.5, ये रिलेटेड पार्टी में आ गया, ठीक है ना। तो इसको नोटिस तो जाएगा क्योंकि डायरेक्टर है, डायरेक्टर डायरेक्टर, ये राशि सिंघानिया तो डायरेक्टर भी नहीं है, इसको तो नोटिस भी नहीं जाएगा, ठीक है सर। है ना। ये तो हाँ रिलेटेड जी। पार्टी हो गई, इसको ना नोटिस जाएगा ना ये सीओसी में शामिल होगी, ठीक है। बेस्ट ट्रेडेक्स, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो ऑपरेशनल को हम अलग लिख लेते हैं 1.20 करोड़। और ये अपना इसका तो कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोलक्स सप्लाईज। अब आगे देखते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। 7 वर्कमैन का क्लेम है 12 लाख का, इसको भी 0.12 दे देते हैं। 3 एम्प्लॉयज का क्लेम है 0.15, जीएसटी ड्यूज 0.70, इनकम टैक्स ड्यूज 0.32, प्रोविडेंट फंड 0.10, रिवाइव फाइनेंस, रिवाइव फाइनेंस में इसको ले सकते हैं हम, है ना, इसमें तो कोई हाँ जी दिक्कत सर, नहीं। ये एफसी में आ ये तो आ जाएगा। जाएगा, एफसी में आ गया, ठीक है। उसके बाद 1। रमन नायर, रमन नायर जो है ये डायरेक्टर है, ठीक है। इसको नोटिस तो जाएगा मीटिंग का, लेकिन ये सीओसी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट इस पर हमें लेना नहीं है, जितना ठीक। लोन अमाउंट है उतना ही लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज 25 लाख, ये भी 25 इसमें आ गया। और बिग लीज, ये भी ऑपरेशनल क्रेडिटर में आ जाएगा, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर में नहीं आएगा, है ना। टेन हाँ लाख जी। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद भी कोई है क्या, बस इतने हो गए। तो अब आप एक बार कैलकुलेट करके देखो कि कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, कितने ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं। ये सर छः, ओसी तो 1.3 हो चार गए। तीन सात और एक 8,
फाइनेंशियल क्रेडिटर तो हो गए 8.10, ठीक हाँ जी। है ना। और ऑपरेशनल क्रेडिटर कितने हैं? तो दोनों 1.30 हुए। 2 2 4 नहीं, ये एक 16 मिनट। 17 2 19 दो 2.94 बनते हैं, देखना एक बार जरा, लिख रहे हो आप? हाँ जी सर। तो 2.94 बनते हैं भाई। ओसीज एक बार एंड दोबारा देख लो, अगर टू देखने हैं तो कोई खास बात नहीं है इसमें। 3 4 5। एक तो 1.20 है ना, बेस्ट ट्रेडेक्स वाला, ये उसी में आएगा, हाँ जी सर, 2.94 ही बने हैं। है ना, ठीक है। अब और टोटल हमारा हो गया 4 9 और 1 10, 9 और 2 11, 11.04। अब आउट ऑफ 11.04 2.94 ओसी है, ठीक है ना। तो हाँ अगर जी। इसका ये प्रोविजन देखें, ये प्रोविजन बोलता है, ये प्रोवाइजो टू सेक्शन 21(8) एक बार देख लेते हैं। 21(8) का प्रोवाइजो क्या बोलता है? Provided that where CD does not have any financial creditor, हाँ, COC shall be constituted and shall हाँ इसको comprise छोड़ दो, such। इसमें इतना रेलिवेंट नहीं है, दूसरा देख लेते हैं, सेक्शन 24(3)(c). सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन C क्या बोलता है? OC or their representative if the amount of their aggregate due is not less than 10% of the debt। हाँ, तो इसमें तो हो रहा है ना, इट इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेट, ठीक है ना। तो 2.94 है ना, आउट ऑफ 11.04, तो इट इज मोर देन हाँ टेन जी सर। परसेंट है हाँ ना। जी। अब इसमें क्वेश्चन यस क्या सर। आएगा, एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हम्म। वेदर वन रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर और मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर। कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसी के? सर, ओसी के जितने ओसी हैं वो अपना अपना चूज कर सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये लिखा नहीं हुआ होगा। है, एक बार सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। एक्ट है ना आपके पास? हाँ जी सर। हाँ, सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 एक बार पढ़ लीजिए। द डायरेक्टर्स पार्टनर एंड वन हाँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन, ओसी। वन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, बस। फिर ये सब ओसीज का एक होगा, फिर बीट सप्लायर, बीट वर्कमैन और बस सब एम्प्लॉय। सब 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 आपस में चूज कर लेंगे, वोटिंग कर लो, ज्यादा बात है तो, फाइन। ठीक है जी, एक पूछ सकता है, एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला इशू भी सेटल हो गया। यस सर। हम्म, ये क्या कह रहा है कि वेदर नॉन इंक्लूजन ऑफ बेस्ट ट्रेडेक्स और ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओसीज इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वाज डन करेक्टली बाय द आरपी, द आंसर इज नो, ठीक है। ये तो करेक्टली नहीं हुआ ना, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओसी शुड बी देयर। ठीक है सर। चलिए, ये भी हो गया। अब अगला चलते, इशू नंबर 4। इशू नंबर 4 क्या बोलता है? वेदर बिग लीज शुड बी कैटेगराइज्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन 8। तो हमें 5(8)(d) पढ़ लेना है, तो सेक्शन 5(8)(d) क्या बोलता है? सेक्शन 5(8)(d) बोलता है आपका, अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट विच इज डीम्ड एज फाइनेंस और कैपिटल लीज। तो ना तो ये फाइनेंस लीज है, ना ये कैपिटल लीज है, ठीक है। ये बेसिकली एरियर्स ऑफ रेंट है, सो दिस इज ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है ना। तो हमें ये कह देंगे कि एरियर्स ऑफ रेंट ठीक है सर। आर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में ये जो है, ये तो बिग लीज को हमने लिया कहाँ है, ऑपरेशनल क्रेडिटर में लिया हाँ जी सर। है ना, हमने जो अपनी, ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर इश्यूज 6, ये तो हो ही गया। हम्म, वेदर डिसीजंस टेकन इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ रिवाइव फाइनेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। इसका तो रिवाइव नो। फाइनेंस, रिवाइव फाइनेंस जो है वो बाद में शायद इंक्लूड किया गया है ना, हाँ जी, नो होगा है ना। आंसर। हाँ,
इसने रिवाइव फाइनेंस ने क्या कहा है? रिवाइव फाइनेंस ने कहा है कि डिसीजंस टेकन इन ऑल थ्री मीटिंग्स हेल्ड बिफोर दे वर इंक्लूडेड as नॉन। they had filed claim as far as back as 4th September and IRP did not claim until 10th December as invalid। इसने बोला भाई सारे इनवैलिड करो, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है तो सर। द आंसर इज नो। और इसमें हम इसका प्रोवाइजो देख सकते हैं, प्रोवाइजो टू रेगुलेशन 12 सब रेगुलेशन 3। तो मैंने भी तो सारे रेगुलेशन ढूंढे, आपको रेगुलेशन ढूंढने चाहिए। हाँ सर, मैं सोच रही हूँ कि ये तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है शायद। वही तो, बिल्कुल कितना वो लगता है कि स्टडी पढ़ने से लगता है, आपने पढ़ के छोड़ दी होगी, छोड़ो। हाँ। रेगुलेशन 12(3) में प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट सच इंक्लूजन shall नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी डिसीजन टेकन बाय द कमिटी प्रायर टू इट्स इंक्लूजन। ठीक है जी। एक्चुअली ये एट टाइम्स पेशेंस खत्म हो जाती है ना, कि एक एक क्या करे मतलब। नहीं, वो बात ठीक है, हाँ चलिए। जी। और इशू नंबर 7 क्या है? वेदर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन अलाउ विड्रॉल यूजिंग इट्स पावर अंडर रूल 11 ऑफ द कोड एज स्टेटेड इन स्विस रिबन्स केस बाय सुप्रीम कोर्ट और अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कैन कोड। अलाउ विड्रॉल यूजिंग पावर। कैन ठीक है, विड्रॉ। तो ये तो स्विस रिबन्स में भी कहा गया था। स्विस रिबन में दिस वाज आल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। स्विस रिबन केस में क्या था, ये भी स्विस रिबन भी हमारे सिलेबस में है। उसमें एक चैलेंज ये भी था टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 12A। तो उसमें बोला था कि भाई दिस पावर लाइज विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। भाई एप्लीकेशन may be made by the applicant or COC, but ultimate discretion lies with the adjudicating authority and it is correct। ठीक है ओ। ना? तो ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर इशू नंबर 8, whether the adjudicating authority can set aside transaction with Raman Nair under section 43। तो रमन नायर वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं पहले क्या है। ये रमन नायर की ट्रांजैक्शन है। रमन नायर का लोन लिया था हमने 1 सितंबर 2019 को। ठीक है, और ये कब शुरू हुई है? अगस्त में हुई है सर। अगस्त अगस्त 20। 2020। ठीक है, तो अगस्त 2020 को ये एप्लीकेशन एडमिट हुई है, 30 अगस्त 2020। और उससे हमने लोन लिया था 20 सितंबर 2020 को। अच्छा, मतलब बाद में लिया है लोन उसे। हाँ जी। हाँ, ये आपकी CIRP स्टार्ट होने के बाद में लिया है लोन। ठीक है, द लोन वॉज टेकन फ्रॉम रमन नायर ऑन 1 सितंबर एज CD वॉज शॉर्ट ऑफ फंड्स एट दैट टाइम। इसमें ये बोल रहा है कि CD वॉज शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो इसके लिए इन्होंने लोन पहले लिया। ली है वो, 2019 में लिया ना, 20 में स्टार्ट हुई है उसकी। हाँ हाँ हाँ, ये गलत लिख दिया हमने। द लोन वॉज टेकन फ्रॉम 1 सितंबर। ये 20 सितंबर कहाँ से लिख दिया? ये 1 सितंबर 2019 को लिया है। ठीक है, विद इन ये लुक बैक आ गया तो तो प्रेफरेंशियली हाँ बात ले ये लिया। है कि अब ये जो लोन लिया है, ये कब लिया है हमने? 1 साल से। और ये रमन नायर जो है रिलेटेड पार्टी है। पर बात ये है कि RP हैज कैरेक्टराइज्ड एज प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, बट प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में होता क्या है? इसमें हाँ तो वो तो। उल्टा है, उसे लिया है, उसको दिया तो कुछ नहीं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? सर बट सिक्योरिटी अगर दी हो एसेट तो। कहाँ लिखा है इसमें? नहीं, इसमें तो नहीं लिखा। हाँ, नहीं, बट उसमें भी क्या है कि इन सेक्शन 43 ऑल्सो देयर इज एन एक्सेप्शन। 43 में एक्सेप्शन क्या है कि इफ इट गिव्स न्यू वैल्यू ओके, हाँ जी। और विद इन 30 डेज वी एंड विद इन रजिस्टर्ड 30 days इट इज रजिस्टर्ड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इट। ठीक है। और उसके बाद में भी क्या है, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज डन विद द रिलेटेड पार्टी तो इट इज डीम्ड एज नॉट बीइंग डन इन गुड फेथ, वो भी है, वो 44 में लिखा हुआ है। बात ठीक। यह है कि यहां पर तो इससे हमने कुछ लिया नहीं है ना, हाँ ये जी। मतलब इससे लिया ही है, दिया तो इसको कुछ है नहीं हमने। एग्जाम में तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे हम, तो फटाफट देखेंगे डेट विद इन ईयर है और वो हाँ कर देंगे डेबिट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी।
तो कहाँ गया ये? तो वेदर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन सेट असाइड द ट्रांजैक्शन, तो नो। क्या आंसर रहेगा इसका? नो। हाँ, नो रहेगा इसमें। बिकॉज, क्योंकि क्या कहता है, इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर, ये बोलता है ना। हाँ फिर जी। इट शुड बी ऑन अकाउंट ऑफ एंटीसीडेंट डेट। तो हमने तो कुछ दिया ही नहीं इसको, ठीक है। बिकॉज सीडी हैज अवेल्ड लोन विदाउट क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ऐसा भी लिख सकते हो अगर आप ऐसा करना चाहो। अगर हमने सिक्योरिटी दी होती फिर भी देखते कि भाई वैल्यू मिली कि नहीं मिली। हाँ यहाँ जी। तो उसके फेवर में कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी हमने, ऐसा तो कोई लिखा नहीं है कहीं, नहीं लिखा ना इसमें। नहीं सुनील। ठीक है, चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब फॉर इशू नंबर 9 क्या है? वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरिम फाइनेंस फ्रॉम रवि फाइनेंस आफ्टर क्रिएटिंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एंटर्ड इनटू करेक्टली बाय द आईआरपी। अब रवि फाइनेंस वाला मैटर देख लेते हैं कि रवि फाइनेंस का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है। ये रिवाइव ये फाइनेंस। हाँ, नहीं, रवि रवि रिवाइव अलग है, रवि अलग है। रवि कहाँ है? ये लिखा है ना, द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ सीडी इज चार्ज टू जनता बैंक एंड ओके। इज वर्थ 8 करोड़। IRP was in need of funds to run the CD as a going concern and hence obtained interim finance of 1 crore by charging plant and machinery to रवि फाइनेंस। अब एक तो ये देख लेते हैं कि रवि फाइनेंस है या रिवाइव फाइनेंस है। सर वो ऊपर है, रिवाइव का अलग है शायद। हम्म। रिवाइव अलग है। नहीं, यहां पर रवि फाइनेंस भी अलग से है, बात ये है ना, यहां पर हमें देखना पड़ेगा ना भाई, अगर रवि फाइनेंस का, सर वो तो इंटेरिम फाइनेंस है, वो तो क्लेम देगा ही नहीं। ये रिवाइव फाइनेंस है, रिवाइव फाइनेंस भी है अलग से, रवि फाइनेंस भी है अलग से, रिवाइव फाइनेंस भी है। नहीं नहीं, सर, क्लेम क्यों रवि नहीं तो देगा? नहीं है। है जी। इंटेरिम फाइनेंस में भी क्लेम देगा वो। इंटरिम फाइनेंस, इंटरिम फाइनेंस की बात ये है ना कि दिया कब है उसने, सर ये वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट होने के बाद ही लेंगे ना। आई रेजोल्यूशन वो एलसीडी कमेंसमेंट डेट के बाद ही लेगा ना इंटेरिम फाइनेंस तो। एक बार देख लेते हैं ना। The plant and machinery of CD is charged to Janata Bank and is worth 8 crores. IRP was in need of funds to run the CD as a going concern and has obtained interim finance of 1 crore by charging plant and machinery to Ravi Finance. Janata Bank has now objected to this action by IRP, stating that its consent should have been obtained. तो अब पॉइंट ये आता है, क्या कहता है? एक तो ये कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है इट इज वर्थ 8 करोड़, ठीक है, और उसका लोन कितना है जनता बैंक का वो देख लेते हैं। एक 10 करोड़ होगा। जनता बैंक का लोन है 3.60 करोड़, ओके, ठीक है। अब 3.60 करोड़ इंटू 2 इतना होना चाहिए। इसकी सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 7.20 करोड़ की इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हम्म। ठीक है ना। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डेट है ना। यस सर। तो उसके बाद में आप रेज कर सकते हो, और इसमें क्या था, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 करोड़ है। हाँ जी। 8 करोड़ है ना प्लांट की वैल्यू। तो उस केस में, और इसने कितना इंटरफेरेंस फाइनेंस लिया? 1 करोड़, बाय क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। तो जनता बैंक का ऑब्जेक्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब हमें पॉइंट ये ढूंढ लेना है कि ये कहां पर लिखा गया है, ट्वाइस ये द सर, अमाउंट ऑफ ये फाइनेंस। ये तो मुझे याद है, मतलब बट मुझे समझ नहीं आया ये। क्या समझ में नहीं आया? 7.2 है ना इसका, तो उससे ज्यादा वैल्यू है। ऐसा है नहीं, वो चार्ज। आपको पता चलेगा जब इंटरम फाइनेंस की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। एक बार इंटरम फाइनेंस की डेफिनेशन पढ़ लो आप। ये है, to raise interim finance provided that no security interest shall be created over any encumbered property of CD without prior consent of creditors whose debt हम्म। is secured over such encumbered property, ये कहाँ से पढ़ रहे providing हो आप? that। रेगुलेशन से? so ये सेक्शन 20। ठीक है, बिल्कुल सही है।
हाँ provided that हाँ, सेक्शन no 20 सबसेक्शन 2 C सी। to C. ठीक है। Provided that no prior consent of creditor shall be required where the value of such property is not less than amount equivalent to twice the amount. तो अब बात देखो ना, इसका लोन कितना है 3.60, तो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, इसको 7.20 तक तो इसके पास रहेगी। उसके बाद में जो 0.80 है उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिखा ना 8 करोड़, तो 7.2 तो उसके लिए छोड़ना है ना हमारे को। नहीं, छोड़ना नहीं है कि उसकी कंसेंट लेनी है, अगर उससे कम है तो, हाँ, क्या अगर बोल उससे रहा है, वो ज्यादा। बोल रहा है नो प्रायर कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर शैल बी रिक्वायर्ड वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट लेस देन द अमाउंट इक्विवेलेंट टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डेट। तो हाँ, इसमें तो फिर कंसेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, आई थिंक। नो प्रायर कंसेंट। अच्छा, उसमें टू रेज इंटरम फाइनेंस प्रोवाइडेड दैट नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट शैल बी क्रिएटेड ओवर एनी एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स whose debt is secured over such encumbered property, provided that no prior consent of the creditor shall be required where the value of such property is not less than the amount equivalent to twice the amount of the debt। ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्रायर कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है इट इज नॉट लेस देन द अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डेट। हाँ, तो वो कर हाँ सकते हैं। हाँ, तो 7.20 उसके लिए छोड़ दिया, उससे तो ज्यादा ही है, उससे ज्यादा है तो आप ले सकते हो। ठीक है तो इसमें क्वेश्चन ये आ जाएगा। सर, इसमें फिर कंसेंट ऑफ क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड ना? हाँ, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रायर कंसेंट नहीं चाहिए। अच्छा, अदरवाइज चाहिए कंसेंट? वो तो है ही। उसके अलावा चार्ज कैसे क्रिएट करोगे, चार्ज तो उसके फेवर में क्रिएटेड है ना ऑलरेडी। नहीं, तो सेकंड चार्ज हो जाएगा ना क्रिएट। हाँ। एक मिनट। तो वेदर द ट्रांजेक्शन आफ्टर क्रिएटिंग हैज बीन करेक्टली एंटर्ड, तो क्या बोले? यस। यस। तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी प्रोवाइजो, ये है। या इसको उल्टा लिख दो, प्रोवाइजो 2। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है। वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग सीआईआरपी बाय सीओसी। यस। हाँ, तो ये आपका 28 में आंसर है इसका। सेक्शन 28 क्या बोलता है? सेक्शन 28 बोलता है मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है। इसमें भी एक पॉइंट आता है, ये भी चैलेंज हुआ है। वो ये कहता है कि मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि अगर अपॉइंटमेंट में कोई चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज सीओसी कर सकती है। ठीक है। तो इसको तो यस ही करेंगे हम, और इसका आंसर रहेगा सेक्शन 28(1)(m)। ठीक है जी, यहां तक हो गए। यस। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो सारे ही हो गए हमारे, क्या रह गया इसमें? ठीक है सर। है ना? तो आपने मेरे से बिना बात की मेहनत करा दी, आपने खुद पढ़ा नहीं। आपने सोचा कौन मत्था मारे, अपने आप यही बताएंगे। एक्चुअली सर, वो आंसर्स नहीं थे ना, तो आई वाज मैंने करी ये, मैंने स्टार्ट कर दी थी काफी देर पहले भी, हमारा हाँ उसमें सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ था। हाँ तो जस्ट कि मैं ये कैसे करूं, मतलब। हाँ।
चलिए मैं देखते 21 हैं। आई ड्राइव 21 बाय माई सेल्फ। हाँ हाँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन आई विल टेल यू। किसका, ये वाला 21 वाला? हाँ जी, आई ड्राइव वंस ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें, आई थिंक। इसमें कुछ पूछना है फिर भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब है तो डिस्कस तो कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं सर, आई हैवंट रेड दिस। अच्छा, पढ़ाई नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अननेसेसरी फिर मैं आई विल टेल यू अगर इफ देयर इज सम इशू और समथिंग। हाँ, मुझे तो लगता नहीं कि वो इसमें इश्यू आएगा, हाँ जी। क्योंकि हमने ना इसमें वो इसके, आपको सबसे पहले करना क्या है, इसके आगे रेलेवेंट रेगुलेशन नंबर या सेक्शन नंबर लिख लेना है। तो यू हैव टू रीड दिस सेक्शन एंड रेगुलेशन अगेन, उसके बाद में अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है। है कि नहीं? थोड़ा ठीक थोड़ा है। कई बार होता है, अब जैसे ऑपरेशनल क्राइटेरिया में आपको लग रहा था भाई वन वन रिप्रेजेंटेटिव होगा या ज्यादा होंगे, तो इस तरह से वो हम्म। बिल्कुल माइन्यूट पूछता है चीजें। हाँ जी। हम्म। आई थिंक जो केस स्टडी लंबी है वो ज्यादा इजी होती है, लेंथी ज्यादा इजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये केस स्टडी ये एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए थी। वो जो है ना, जो जीआईपी रूट पे जाते हैं उनके लिए थी। ओके ओके हम्म। ओके। ये हो गया। तो एक बार इसके आंसर आप उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप पे। और क्या क्वेश्चन था आपका, एक और भी था ना कुछ पॉइंट? सर वो तो मैंने वो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व हो गया था। आई वाज जस्ट वाचिंग योर प्रीवियस वीडियो। ओके। तो उसमें ये क्वेश्चन था, बट नेक्स्ट नेक्स्ट जब क्वेश्चन आया तो इसका आंसर बाय इटसेल्फ ही आ गया था। तो वो तो अच्छा, मेरा क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। ओके। क्या था क्वेश्चन वो वैसे? सर वो था हम्म। आपने ग्रुप में डाला था मेरे कारण? हाँ जी, मैं लेट मी चेक। हम्म। सर इसमें था कि रीपेमेंट ऑफ लोन दो, वेदर इट इज प्रेफरेंशियल और अंडर वैल्यूड। एक मिनट मुझे भी खोलने दीजिए। ये आपने ग्रुप में लिखा था या इंडिविजुअल लिखा था? सर आपको ही दिया था, इंडिविजुअल आपको ही लिखा था ये मैंने। एक मिनट, मैं भी देख लेता हूँ। नहीं, मैं कुछ और इसमें डिस्कस करना चाह रहा था। हम्म। ये आप रेफर कर रहे हो, इसका सेक्शन 79(2)(d) है ना? हाँ जी। इसकी बात कर रहे हो ना, तो एक मिनट। सेक्शन 7, एक मिनट में खोल देता हूँ सेक्शन 79(2)(d). मेरे माइंड में कुछ और बात आ रही थी, इसमें देख के देख रहा था जरा इसको। सर person who is spouse or relative of any person with whom the director is in part. ये पार्ट 3 में था ना, 486। लेकिन क्वेश्चन तो अंडर वैल्यूड पे था ना ये। नहीं सर, ये है कि एक्चुअली अंडर वैल्यूड है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन टू एन एसोसिएट इज अंडर वैल्यूड और प्रेफरेंशियल। तो ये प्रेफरेंशियल होगी ना, अंडर वैल्यूड नहीं होगी ट्रांजेक्शन। देखिए, अंडर वैल्यूड और प्रेफरेंशियल में फर्क क्या है? अंडर वैल्यूड मतलब ये कि पैसे, प्रेफरेंशियल का मतलब पैसे आपने देने थे। ठीक है? हाँ तो जी। ये यहाँ पर नहीं, हम इसको वहां बैंक्रप्सी पे जाके देखते हैं। इसका आंसर आपको ना बैंक्रप्सी में मिलेगा। एक मिनट में बैंक्रप्सी वाले प्रोविजंस खोलता हूँ। उस पर केस स्टडी भी कर रखी है हमने। बैंक्रप्सी 542। तो रेगुलेशन में चेक करना है। नहीं, ये ना
पहले तो आप उसी में देख लो, ये जो जहां पर ये अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं है, 164 159 के आसपास सेक्शन है, मेरे को एग्जैक्ट सेक्शन याद नहीं है, 158 के आसपास होगा शायद सेक्शन। ये 165 ये है ना, प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन। अब देखो, प्रेफरेंस और अंडरवैल्यूड में बेसिक फर्क क्या है। प्रेफरेंस ट्रांजेक्शंस आर ऑन अकाउंट ऑफ एंटीसीडेंट डेट। पैसे आपने देने हैं, आपने प्रायोरिटी चेंज कर दी एज पर सेक्शन 178, ठीक है। या 178 में देयर इज ए प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप, सो दैट प्रायोरिटी यू हैव चेंज्ड। अंडरवैल्यूड में क्या है, अंडरवैल्यूड में यू हैव गिवन इट फॉर फ्री। ये दोनों में फर्क है। ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट। तो ये अंडरवैल्यूड, अंडरवैल्यूड कहाँ गया, वो पहले ही चला गया होगा। इसमें उल्टा कर रखा है, अंडरवैल्यूड 164 में है। अब 164 में क्या बोलता है, 163 होगा शायद है। तो 163 160, 164 है सर हाँ अंडर वैल्यू। 164 अंडरवैल्यूड ट्रांजेक्शन बोलता है। 2 इयर्स पोर्शन ऑर्डर। तो और बाकी फिर आपका ये 164 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, फॉर द for the पर्पस purpose ऑफ of this section a bankrupt enters into an undervalued transaction with any person if ये marriage gift if it is in consideration of marriage। तो बात ये है कि if it is given in consideration of marriage so it is a undervalued transaction, दिस। ठीक है। तो बेसिकली बात ये है, क्यों ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि मैरिज गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट इन इनकम टैक्स ऑल्सो। मैरिज पे तो जितना मर्जी गिफ्ट ले लो, हाँ जी, ठीक है। इन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। अब बात ये है, क्या अब क्वेश्चन क्या था आपका। सर बी, रीपेमेंट ऑफ लोन टू एन एसोसिएट इज प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन और अंडर वैल्यूड, so ये प्रेफरेंशियल ही होगी ना। रीपेमेंट तो प्रेफरेंशियल है, क्योंकि रीपेमेंट का मतलब ही ये है कि आपने लोन लिया हुआ है, उसकी पेमेंट कर रहे हो आप। ठीक है। भाई रीपेमेंट ऑफ लोन का अपने आप ही मतलब है कि लोन हैज ऑलरेडी बिन टेकन, तभी तो आप पेमेंट कर रहे हो उसकी। हाँ जी, और ठीक है। मिले कोई ना कोई होगा, ये डायरेक्टर होगा या एसोसिएट होगा, है ना। हाँ, ये तो एसोसिएट है सर। हाँ तो बस इसीलिए तो आपने क्या किया, उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी। भाई उसकी प्रायोरिटी 178 में थी, 178 में डिफरेंट प्रायोरिटी है, आपने उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी, तो ये प्रेफरेंशियल हो गया। और ये मैरिज गिफ्ट है, ये तो अंडर वैल्यूड दिया ही हुआ ठीक है सर। है ना, यही था हाँ और जी, क्या। हाँ जी। और भी कोई क्वेश्चन था इसके अलावा। नहीं सर, अभी तो यही है एक्चुअली। आई हैव स्टार्टेड स्टडी, मैं सारा रिवाइज कर रही हूँ दोबारा से ना। ओके, तो आई एम प्लानिंग टू गिव इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा है। सही है, ठीक है।